माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Question 61. 61 here. Question 61. 61 here. 1 minute, this is question hour. क्या Question 61. क्या कहना है आपको? What is your point of order? Question hour. By No. क्या? We have Quickly. Sir, I have to take questions. you have been a kill. Yeah. Privileges are under attack. Lynching our parliament. And the rule book. Sir, there was a ruling day before yesterday on proceedings in this House that the chair had expunged certain remarks or they were withdrawn and the matter was settled. A ruling was given Yes. that neither the print media nor the electronic media shall reproduce or telecast. But it happened. It was a brazen breach. Not only that, threats were given. Question is of the privileges of this House, the ruling of the chair, because if we allow repeated violations, then it's not a question only of privilege. What's your point? So the members have given notice. The rule 192 makes it very clear that if the chair is satisfied of the urgency of the matter, then it has to be immediately referred to the Privileges Committee. Summons must be issued. Sir, there is one more submission. I will stop, sir. It was said that members should produce evidence. It's the chair has to direct. FIR has to be registered. The government has to produce the evidence. Let me now tell you, 1 minute. 1 minute, please sit down. Let me say something. I've heard this morning's proceedings. I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this House. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. Now let's get on with questions. अब क्या है? अब हो जाएगा। एक तो ये हो गया, दो पार्ट और हो गए। एक तो यहाँ की कार्रवाई की FIR दर्ज हुई मेरठ में, जबकि FIR दर्ज नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशनल। Let's take that up separately. दूसरा, मेरे घर पे कल जिस तरह भाजपा युवा मोर्चा के लोग गए, ऐलान करके गए और उन्होंने तोड़ फोड़ करी, जिस तरह मुझको 3-8 दी जा रही है, इसके मतलब तो लिंचिंग खुलेआम कर रहे हैं। No, we will secure. खुलेआम बोले। नहीं, 1 minute. नहीं, Ravi Shankar ji, we will ask for a factual report from the concerned authorities about what the honourable member is saying. That. No. Sir. Just a minute. Let's settle this. We ask for a report from the concerned authorities. बैठ जाइए. This matter is over now. This matter is over. वो कह के गए, बीजेपी युवा मोर्चा ने कह के आया। देखिए, we will ask for a report. Naresh ji, please. Now let us get on with the question hour. Please. भाई बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए. Dr. Swami, please. Let me get on with the question hour. We will ask for a report on this subject. Sure. Question 61. Sir, 61. Question 61. Okay, let the answer be given. Yes. A new study has revealed that every third farmer, 34.26% in the state is living below the poverty line. Sir, my first question to the Honourable Minister, what is the government action to remove the poor people, those who are below the poverty line, how to increase their financial condition in the rural areas, particularly the farmers? What are the actions government proposed to?
Please का have जो सवाल coordination था, between senior and junior in the ministry. सवाल था गरीबी रेखा से 50% किसान गरीबी रेखा के नीचे। इसका अध्ययन 11-12 में हुआ था और उसमें जो रिपोर्ट आया था कि 25.7% ग्रामीण कृषि और गैर कृषि ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे शामिल है। उसके बाद हमने 14 से लेकर 17 तक 8 योजनाओं का बाहरी संस्थानों से इसका अध्ययन कराया, उसकी रिपोर्ट आई, उसको हमने लागू किया और मंत्रालय के अंदर भी राज्यों से इनपुट्स लेकर जितनी सारी योजनाएं चल रही थी पहले से उसका अध्ययन किया और फिर नई योजनाओं का भी निर्माण किया, पुरानी योजनाओं में भी सुधार किया और अध्ययन के जितने रिपोर्ट आए उस सबको लागू किया। No, please listen to you will get another question. Listen to this. Don't interrupt the reply. No, please. That's not the procedure. Now, please ask your supplementary second question. Second question, please. Second question, most important thing is this, the Minister what has given us the reply. He either intentionally or misled by the government officials, what he has said is not the correct reply. This is number one. Number two, in our country, rich, poor, divided, widens as Indian economic growth. Is it correct? If it is so, what this action government proposed to? Thank you. महोदय, ये जो अध्ययन हमने कराया, माननीय सदस्य का जो लेख किया गया है उस पर हमने ले भी किया है कि जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, वो 12-13 से 15-16 तक जो क्रियान्वयन हुआ था उसका अध्ययन कराने के बाद इसी तरह से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का भी अध्ययन 17-18 में कराया और जो गरीब किसान हैं, इस सारी योजनाओं के जो रिपोर्ट आए हैं अलग अलग हैं और उसके बाद हमने कुछ नई योजनाओं का निर्माण किया। जैसे ये जो हमारे कृषि उद्यमी हैं उनके लिए SFSC गठन पहले ही हुआ था हमारी सरकार आने के पहले, लेकिन अध्ययन में ये बताया गया कि इसका बहुत बड़ा लाभ है तो उसका आवंटन बढ़ाया और उसमें 7 वर्षों तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण उद्यमी को, जो छोटे छोटे गांव में उद्यमी है, 7 वर्ष तक कोई उनसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा और 7 वर्ष के बाद उस कैपिटल को जमा करेंगे। इसी प्रकार से सतत कृषि विकास मिशन में जो सुझाव आए कि किसानों के खेत में भी पेड़ लगने चाहिए, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना हमने शुरू की, जिसके तहत छोटे छोटे जो किसान हैं पहले सिर्फ सरकारी ज़मीन में पेड़ लगाने के लिए राज्यों को पैसे जाते थे वन विभाग के माध्यम से। ये नई योजना ये पिछले वर्ष शुरू हुआ और राज्यों को कहा गया कि आप कानून बदलो, 20 प्रजाति के लकड़ियों को किसानों को लगाने की अनुमति दो, काटने की अनुमति दो और आवागमन में भी जो नियम थे पुलिस पकड़ती थी। 8 राज्यों ने कानून में परिवर्तन किया और पिछले वर्ष से ही 8 राज्यों में मेड़ पर पेड़, खेत में पेड़ लगाने की योजना शुरू हुई। फिर इस वर्ष भी 5 राज्यों ने शुरू किया है। इसी तरह से जो हमने अध्ययन कराया था एक अब स्वामीनाथन जी का ये था कि कम से कम 80 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक मार्केट होना चाहिए, लेकिन देश में स्थिति ये कि 580 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक मार्केट है। तो एक तो बड़ी मंडियों को 585 मंडियों को ये मार्केट से जोड़ने का काम शुरू किया और दूसरी ओर इसी वर्ष 2 महीना पहले नया कृषि मंडी अधिनियम राज्यों के साथ 2-3 महीने तक चर्चा करने के बाद इसको जारी किया और मुझे खुशी है कि 2-3 महीने के अंदर ही राज्यों ने अपने नियमों में परिवर्तन शुरू किया। इसी प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड, कई ऐसी योजनाएं हैं जो छोटे छोटे किसान को लागत कम हो। इसी प्रकार से बहुत पहले अध्ययन हुआ था 2003 से 5 के बीच में कृषि वैज्ञानिकों ने नीम कोटेड यूरिया, छोटे छोटे किसान एक यूरिया के लिए परेशान रहते थे। मैं भी जब लोकसभा में आया था 89 में तो पहला डिमांड किया था कि यूरिया मेरे क्षेत्र में भेजिए, रायक भेजिए।
तो 3 से 5 के बीच का रिपोर्ट पड़ा हुआ था, उसको भी सरकार बनने के बाद 1.5 वर्ष के अंदर लागू किया और आज जो छोटे किसान हैं गांव में उनको बहुत आसानी से यूरिया उपलब्ध होता है। तो तमाम ऐसी योजनाओं का अध्ययन कराया, नई योजनाओं का निर्माण किया और कई पुरानी योजनाएं भी बहुत अच्छी योजनाएं थी, उनके भी गति को तेज किया। थैंक यू। श्री रेवती रमन सिंह। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये बताया कि ये योजनाएं हैं, आप क्या आप सर्वे कराएंगे गांव के किसानों में कि कितने लघु और सीमांत किसान गरीबी के रेखा के नीचे हैं? एक तो ये। दूसरा, आपने कहा कि हमने ये स्कीम किया है, यूरिया हमने कर दिया है और तमाम आपने मिशन के तहत आपने बताया, लेकिन मानवर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो किसान अन्नदाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन किया, आज आत्महत्या क्यों कर रहा है? आज अरहर की दाल, अरहर इतना सस्ता आपने विदेश से मंगवा लिया, सरसों का दाम इतना गिर गया है कि दलहन तिलहन क्यों बोएगा, और आलू सड़ के खेतों में सड़ गया। आज मैं आलू के लिए क्या किया, आज टमाटर किसान 2 रुपया किलो बेचता है और दिल्ली में टमाटर 80 रुपया किलो है। तो मानवर इनकी नीतियाँ जो हैं किसान विरोधी हैं। किसानों के लिए आप खाली कागज़ में काम कर रहे हो और अगर धरती पर धरातल पर आप देखो तो आपका एक भी काम किसानों को जो आप सवाल पूछिए ना। 2022 तक ये कह रहे हैं कि हम डबल कर देंगे इनकम, कैसे करेंगे मानवर, ये मैं जानना। थैंक यू महोदय। माननीय सदस्य ने अच्छा विषय उठाया है और वास्तव में किसान समस्याओं से ग्रस्त है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये जो उत्पादन बढ़े, अब जैसे आलू की आपने चर्चा की, अब आलू का उत्पादन ज़्यादा हुआ, उत्पादन बढ़ा, 15-16 का जो उत्पादन है 8% की वृद्धि हुई। अब जो सरकार की योजना पहले से चल रही थी, मैंने शुरू किया, पहले से योजना थी कि बाजार में हस्तक्षेप करें, जिन जिन्सों का समर्थन मूल्य नहीं है उसके लिए यदि उत्पादन 10% ज़्यादा हो और कीमत 10% कम हो तो राज्य सरकार प्रस्ताव बनाएगी और भारत सरकार को देगी और बाजार हस्तक्षेप होगा और जो डिफरेंस होगा आधा राज्य सरकार देगा, आधा भारत सरकार देगा। हमने इसमें परिवर्तन किया कि 10% जो खरीदने की बात थी उसको 20% कि नहीं 20% तक खरीदा जाए। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ पहले कम राज्य उठाते थे, क्योंकि और आज लेकिन तेज हुए हैं। जब किसान जगा है तो अब राज्य सरकारें भी तेज हुई है। ये जो बाजार समर्थन बाजार हस्तक्षेप योजना है, तो इसके तहत हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश ने आलू खरीदने का प्रस्ताव भेजा और हमने 24 घंटे के अंदर मंजूरी दी। आंध्र और तेलंगाना ने अच्छा सर बैठ जाइए, सुन लीजिए प्लीज। यू हैव हैड योर क्वेश्चंस मिस्टर भट्टाचार्य, प्लीज। सर मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 17 के अंदर आलू की खरीद हुई है। वहाँ के जो आंकड़े आए हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आलू की खरीद हुई है बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत। तो मैं बता रहा था कि ये जो बाजार हस्तक्षेप योजना है, इसके तहत कई राज्यों ने लाभ उठाया है। ये बात सही है कि पहले बहुत इसका लाभ नहीं उठाते थे। पहले किसानों के बीच भी जागरूकता नहीं थी, दबाव भी नहीं पड़ता था। दबाव के कारण बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। और जिनका समर्थन मूल्य है धान और गेहूं की खरीदारी जो खाद्य मंत्रालय हमारा है वो करता है, लेकिन पहली बार दाल की खरीदारी मूल्य स्थिरीकरण फंड पहली बार बना सर 14-15 में। जरा माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार देश में मोदी सरकार आने के बाद मूल्य स्थिरीकरण फंड बना और फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से थैंक यू
फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से पहली बार बड़ी मात्रा में ये खरीद की गई है। लेकिन इसके अलावा प्लीज सदस्य सुने, इसके अलावा भी जिनका समर्थन मूल्य है, ऑलराइट, फूड सप्लाई मिनिस्ट्री नहीं खरीदती है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमको प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। ये प्रश्न इन्होंने उठाया है तो एक तो जिनका समर्थन मूल्य नहीं है उसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना, दूसरा जिनका समर्थन मूल्य है और फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री नहीं खरीदती है उसके लिए डोंट इंटरप्ट, उसके लिए बाजार हस्तक्षेप, उसके लिए मूल्य समर्थन योजना है। और मूल्य समर्थन योजना के तहत हम माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि इसके तहत भी बड़े पैमाने पर जिन राज्यों से प्रस्ताव आए हैं उन राज्यों में खरीद हुई है। ये योजना पुरानी है लेकिन रफ्तार बढ़ा है इन योजनाओं का। उसके भी गाइडलाइन थे कि उत्पादन का हम 20% खरीदे, उसको बढ़ा के हमने 40% किया है। थैंक यू। One minute, please. I have something to say. Naresh ji, please sit down. I think the question hour will be most productive if both the questions and the answers are short and crisp. Let me go to the next question. Shri Tapan Sen. It's not your question. Chairman sir. Yeah, please. मंत्री जी ने Please, it's not your question. 9 पॉइंट योजना गिनाया। Please sit down. Please. 9 पॉइंट योजना गिनाया और फिगर दिया 2011-12 का। 2011-12 का फिगर दिया अबाउट द पॉवर्टी लेवल एंड वो 9 पॉइंट योजना गिना उसको बात का। एंड व्हाट इज द फेट ऑफ द योजना का मंत्री जी को मालूम है? Question, please. वही क्वेश्चन है। इंटरेस्ट सबवेंशन के बाद बोल रहे हैं 2/3 of the farmers are out of the institutional credit. आपका इंटरेस्ट सबवेंशन कौन सा काम में आएगा? And the फसल बीमा योजना, it has become a squeezing machine. Have you not in your own ministry's report says 21,500 crore premium collected last year and claims settled only 714 crore, 3.3%. Your Fasal Bima Yojana has become a squeezing instrument. Tapan ji, please ask your question. So, whether you are going to restructure your schemes, which can really carry the benefit, otherwise, thank you, and stop the stream of suicides. Thank you. Thank you. To 21,500 peasants has committed suicide. Thank you. That to all in your ruled states. महोदय, संस्थागत ऋण की बात माननीय सदस्य ने की है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि 13-14 में ये जो ऋण प्रवाह था ये 6 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 17-18 में 10 लाख करोड़ किया गया और जो ब्याज सहायता था वो 7,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा के माननीय सदस्य 20,000 करोड़ किया गया है। दूसरा प्लीज Mr. Tapan Sen, please. Listen to the reply. Please listen to the. तीसरी जानकारी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि देश में 2007 में एक ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप बनाकर जो एकदम कमज़ोर, जिनको बहुत कम ज़मीन है या भूमिहीन है, तो ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप बनाकर 4 से 10 किसानों के ग्रुप को ऋण देने की व्यवस्था थी। तो 7 से 14 तक 6 लाख ऐसे समूह बनाए गए थे और मैं बताऊं कि इस 3 वर्ष के अंदर इस प्रकार के 16,000 समूह बनाए गए हैं, उनको ऋण मुहैया कराया गया है। संख्या चाहिए वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। He will make the information available. दूसरा, माननीय सदस्य ने अच्छा किया कि फसल बीमा योजना की चर्चा की। ये फसल बीमा योजना जब हम सरकार में आए थे तो कैसी योजना थी कि सभी मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी दल का शासन हो, सबने कहा कि ये योजना हम नहीं चला पाएंगे
और किसानों की ओर से भी उसका विरोध था, क्योंकि उसमें कैपिंग था कि यदि एक किसान का 1 हेक्टेयर में 50,000 का लागत है तो उसको 18,000 20,000 मिलेगा, क्योंकि राज खजाने पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा, प्रीमियम भी ज़्यादा था। तो नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 6 महीने तक सभी राज्यों के अधिकारी मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में उनके राज्य में जाकर बैठक हुई, और जो नया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया तो पहले जो किसानों को प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता था वो कम किया गया। अलग अलग ज़िले में अलग अलग प्रीमियम रेट था, पूरे देश के हर जिले के लिए एक प्रकार का किया गया, और रिस्क बढ़ाया गया कि कोई कैपिंग नहीं होगी। और सर इसके प्लीज सर 2 मिनट उनका जो सवाल है उस पर मैं आ रहा हूँ। प्लीज, वी हैव टेकन 15 minutes on one question. उस पर मैं आ रहा हूँ। प्लीज सिट डाउन। उनका जो सवाल है, प्लीज उनका जो सवाल है कि मालो माल हो रहे हैं प्लीज लोग, प्लीज मैं उनके सवाल पर आ रहा हूँ। लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। महोदय, ये बीमा है और उनके ध्यान में आना चाहिए कि 11-12 में 12-13 में जब कृषि अनुकूल वर्ष था तो जितना प्रीमियम जमा हुआ उसका 63% भुगतान हुआ। 15 और 14-15 में मौसम विपरीत था तो 100% से ज़्यादा भुगतान हुआ। जहां तक अभी जो बीमा शुरू हुई है इसमें रिस्क बढ़ा है, प्रीमियम बढ़ा है, लेकिन किसान पर बोझ कम है, राज खजाने पर बोझ पड़ रहा है। थैंक यू। एक मिनट सर, राज खजाने पर बोझ पड़ रहा है और इसलिए कई प्लीज अरे भाई सब इनको ये उत्तर तो सुनना ही। All right, now let me go to the next question. We are taking too much time. कई राज्य सरकारें अपनी बीमा कंपनी बनाने जा रही है। Please don't. पंजाब और गुजरात ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। किसान को बहुत इसमें रिलीफ है, ये सुरक्षा कवच है, राज खजाने पर बोझ पड़ रहा है, इसलिए गुजरात और पंजाब ने अपनी कंपनी बनाने का तय किया है और हमने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है, लिखा है कि आप भी अपनी कंपनी बनाओ, लेकिन किसानों का ये सुरक्षा कवच है, इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र यादव, प्लीज प्लीज। Thank you, Chairman, sir. The government has accepted before the Supreme Court that only 40% of the farmers have benefited from agricultural schemes. In this regard, what action, if any, has been taken to expedite the coverage of agricultural schemes, especially the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, where, as the Supreme Court has noted, the coverage is no more than 20%. Thank you, sir. Thank you. फसल बीमा योजना का कवरेज जो था 20% था, लेकिन पिछले वर्ष जो नई योजना शुरू की गई वो 30% पर गया है। पहले गैर ऋणी किसान बीमा नहीं कराते थे, चूँकि इसमें बहुत सुरक्षा और रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं था, तो जो ऋण लेते थे उन्हीं का बैंक प्रीमियम काट लेती थी। गैर ऋणी किसानों का इसमें आकर्षण नहीं था। लेकिन नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब शुरू हुई तो पिछले खरीफ के फसल में 75 लाख गैर ऋणी किसानों ने फसल बीमा कराया, जबकि उसके पहले पुरानी योजना में मात्र 15 लाख किसानों ने, गैर ऋणी किसानों ने कराया था। तो कवरेज 20 से 30 हुआ है और सभी मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई है कि इसको बढ़ा के इस वर्ष 40% किया गया। थैंक यू। क्वेश्चन 62। यस चेयरमैन सर, उत्तर सदन के पटल पर उपस्थापित है। Supplementaries, please. Sir, the whole world is going towards gender justice, whereas in judiciary there is gender discrimination runs deep in judiciary. There are not enough women lawyers, judges in the courts today. There is one female judge in Supreme Court out of 31 judges, 2 female chief justices in the high courts, and only 8.5% of the women judges in the high courts, and only 12 female senior advocates in the bar, in the Supreme Court. So the government has, this issue has been discussed in the floor of the House earlier also. And now with the reply, the government says that everything is with the Supreme Court and the government has no responsibility in this. I would like to know from the Honorable Minister,
whether the government will consider, irrespective of whatever the provision, constitutional provision is there. Earlier also, in the appointment of judges, this parliament took initiative to amend the constitution. Now to give gender justice, will the government come forward as it has promised in several earlier cases? Thank you. Sir, Honorable Rahman ji, very seasoned and experienced parliamentarian. Under the Constitution, Article 213 and 217, he would very much know there is no provision for reservation. But the commitment of Narendra Modi government towards gender justice is complete and total. And therefore, I would like to gently remind him that when this government came to power and when the Prime Minister was kind enough to give me the Ministry of Law and Justice, I wrote way back in July 2014 to all the Chief Justices that we must ensure, and sir, allow me to read only one paragraph of that, the need for giving representation to scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minorities and women may also be please kept in my view while making recommendations for appointment. So I have been sensitizing the Chief Justices. Thank you. Sir, he asked about that law. He knows it very well. It was a unanimous law passed by both houses of parliament. 50% of the state Vidhan Sabha. But the Supreme Court in its wisdom chose to set it aside. In spite of having our reservations with the reasoning, we have accepted it. But one particular data I would like to tell this House and through House to the country, sir. The working strength of subordinate judicial officials in the country in the various subordinate judiciaries, 16,443. And the total number of women judicial officers is 4,704, out of which 1,473 have been appointed in the last 3 years of Modi's government. About High Court, your point is well taken. There are only 66 women judges in the entire High Court of the country and only one Supreme Court judge. Therefore, in my own way, sir, I keep on sensitizing. His point is very well taken. We need to make it more gender representative. And I differ with you in one thing. A very good number of women lawyers are there in all the High Courts of India and the Supreme Court. But as you know, there is a collegium system where we have a limited role. But as the law minister, I continue to sensitize the entire appointment process. Thank you. Second question. My second question is, I fully agree with the Honorable Minister that the Constitution is very clear. But the Parliament, I would like to, through you, like to put this question, whether the Parliament is so helpless, or could the government take up, instead of writing letter, convey the will of the Parliament to the Supreme Court and the Chief Justice of India and impress upon why the Supreme Court is against. We also like to know why the Supreme Court is against giving gender justice. Is they feel that they cannot get proper material from the by doing gender justice. Perhaps it will not be fair to say that the Supreme Court judges are against gender justice. I wish to inform this Honourable House, it is my third term as the Law Minister of India. The first was in the Bajpayee government, the second in the Modi government. I interact with them. They are quite open to the idea. And we continue to impress. But yes, I take Rahmanji's point very well, sir, that he has expressed a concern in the House, and I will convey this concern to them. We are not helpless. I wish to make it very clear. As a member of this House and of the Parliament, I am quite aware of the supremacy and sovereignty of my Parliament. And whenever the need comes, I convey in this House. And I also conveyed in that House. Therefore, the might and sovereignty of this House I am aware. And I am also aware, sir, that it is only this House which is the forum for ensuring accountability of governance. That I know for very sure. Thank you. Shri Vijay Sai Reddy. To dispose of the pending cases, this country requires about 70,000 judges. Even the Law Commission has recommended for appointment of 40,000 judges. Whereas, right now in the country we have 12,000 judges
to dispose of 3 lakh cases. Please focus on the question. Yes, sir. And further, sir, in the country since 1950 to 2017, there have been 44 Chief Justices in the Supreme Court of India, and whereas there have been, during the relevant period, there have been only 6 women judges. I would like to know from the Honorable Minister, Law Minister, whether the government and Supreme Court of India is taking up any reforms so as to improve the women representation in the higher judiciary. This is the question. Thank you. Thank you. I said in reply to the first query, sir. Any kind of reservation is not contemplated in higher judiciary. But the government, and on behalf of the government, I as a law minister keep on sensitizing. We must give presentation to minorities, to scheduled caste, scheduled tribe, including women. That shall be a common endeavor. Sir, one thing I would like to clarify in this house today. He said 70,000 judges are needed. With great respect, sir, the Supreme Court in Imran Khan case is still reevaluating that number. That is not right. And I would like this house to know, sir, that today there are 4,846 vacancies in the subordinate judiciary in the country. And you all know that in the appointment of subordinate judiciary, neither the government of India has to play any role, nor the state government has to play any role. The High Court themselves appoint, or on their recommendation, the Public Service Commission appoints. Therefore, it is very important that the judiciary should take up this filling up of 4,846 vacancies on a priority basis. Thank you, Shri Mahesh Poddar. सभापति जी, मंत्री जी ने सूचना दी है कि केंद्र का कोई रोल नहीं है महिलाओं को या और कोई रिजर्वेशन में, और रिजर्वेशन का कोई प्रावधान भी नहीं है और कोई आंकड़े भी मेंटेन नहीं किए जाते हैं। लेकिन ये तथ्य है कि जजे की कमी है, और ये भी एक तथ्य है कि सामान्य जानकारी में कि इस पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, एसटी सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो क्या मैं मंत्री जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वो बार बार, जैसा कि उन्होंने बताया 2014 में उन्होंने सेंसिटाइज किया था, क्या वो बार बार हाई कोर्ट को स्मरण पत्र देते रहेंगे ताकि जब तक सरकार सेटिस्फाइड नहीं हो स्थिति सुधर नहीं जाए? धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य को बहुत विनम्रता से बताना चाहूँगा कि कई राज्यों में महिलाओं का आरक्षण सबऑर्डिनेट जुडिशरी में है, और भारत के संविधान की धारा 234, 235 और 309 के अंतर्गत कई राज्यों ने हाई कोर्ट की से परामर्श से नियम बनाए हैं जिसमें आरक्षण का प्रावधान है। तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में इस बात का प्रावधान है। लेकिन जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, जैसा मैंने पहले बताया, धारा 213 और 217 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उसमें प्रावधान की व्यवस्था नहीं, आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन जहां तक संसद का सवाल है, संसद का पूरा अधिकार है कि वो मुझसे सवाल पूछे, जैसा माननीय रहमान जी ने पूछा, अपनी चिंता व्यक्त करें। और मेरा इस देश के कानून मंत्री के रूप में फर्ज बनता है कि मैं माननीय न्यायाधीशों को बताऊं कि संसद की चिंता है। और इसके साथ ही जो नारी समानता का हमारा एक आग्रह रहा है कि हम उनको अवसर दें, वो हमको बताएं। ये हम करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। श्रीमती विजिला सत्यानंद। Thank you, Chairman, sir. Respecting our well-learned law minister's statement to us that there is no reservation for women in the judiciary appointments, I would like to bring to your kind notice that for an example, in Tamil Nadu, we have our Honorable Amma, when she was in office, she introduced all Mahila courts. So all the Mahila courts had exclusively women lawyers, women PPs, women, those who represent, but only the judges. So only the judges, I put the question. Now we need only in a true spirit and true cognizance. I know that the real concern will be there for the judges who can hear the real victims, those who are really in need and those who really need justice. When they approach with kind-hearted look on the judiciary, we need a women judge there. So I would like to bring to the Honorable Minister that we will all together make a move towards making exclusive women judges in all the Mahila courts all over the country. It's a proposal. Will it be done? I now the Honorable Minister,
will surely take note will of our it. India move, the judiciary move Thank you. towards making women judges everywhere in all the district courts, high courts, and to the highest courts? I'm sure the Honourable Minister will take note of Sir, it. I do take note of her very profound suggestion, sir, with one caveat. Namely, if there is a demand for women issue, we only need women judges. Then the entire judicial system also come into scrutiny. And we are very proud of the judges of India, whether they are men or women. They have given very profound judgment. Non-minority judges have upheld the rights of minorities. Non-minority judges have held the rights of scheduled caste. And many of the sterling judgments of Supreme Court for women rights have been done by male judges. Therefore, we have to take into account in the sense that the fairness of the justice system should also remain intact. Question number 63. Questioner not present. Let the answer be given. Yes, sir. I laid the answer on the table of the House. Right. Shri Alok Tiwari. नीति आयोग ने लगभग 18,000 करोड़ 2 कॉरिडोर बनाने के लिए दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और उसकी गति लगभग 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रखने की। मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा नेटवर्क रेलवे का है और इसमें तकरीबन 2.5 करोड़ वो यात्री देश भर में यात्रा करते हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, लोग घायल होते हैं, मरते हैं और इस प्रकार की खबरें हमेशा आती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ये स्पीड बढ़ाने से पहले जो आप बढ़ाने जा रहे हैं, क्या इसके पहले सुरक्षा और संरचना के बारे में कोई कदम उठाने का आपने इसमें अध्ययन किया है और पिछले 3 सालों में इसमें क्या प्रगति हुई है, ये मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू। कहने के लिए खुशी है कि जैसे कि सम्मान्य सदस्य ने पूछा कि रेल की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गति, सुरक्षा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, गेटिंग ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी, सभी के ऊपर हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की और इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि एक काम करेंगे इसके लिए बाकी के काम की तरफ कोई नज़रअंदाज किया जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है, सभी के ऊपर काम किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में सदन को अवगत किया गया था क्योंकि जब बजट प्रेजेंट किया तो पिंक बुक जो होता है इसमें इसको इंक्लूड किया गया था। उसकी वजह यह है कि सर हमको कहने के लिए खुशी है कि ये 2 कॉरिडोर जिस राज्यों से जाएंगे उसकी कुल आबादी देश के सब आबादी से 2/3 आबादी है। उसमें आपके राज्य उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये सभी राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। तो हमें चाहते हैं कि ऐसे राज्यों को सुविधा देंगे तो करीबन हमारे 1/3 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। और इसीलिए जो सुरक्षता की आपने बात की, इसमें स्पीड बढ़ाने के साथ साथ हम लोग सुरक्षता के लिए उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेट किए जाएंगे पूरे 3000 किलोमीटर रूट किलोमीटर्स के ऊपर। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाई जाएगी ताकि कोई हादसे की संभावना ना हो। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम लगाई जाएगी, पहली बार उसका भी एक लाभ होगा। फेंसिंग किए जाएगी पूरे रूट्स को ताकि कोई कैटल वगैरह बीच में ना आए। साथ में ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, यानी जो ट्रैक फेलियर हो सकता है, असेट फेलियर हो सकता है, उसके बारे में जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, इसका भी प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। और साथ ही में मुझे कहने के लिए खुशी है इस तरह से हम कर रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रूट वाइज सिंगल कंपोजिट वर्क एक ही एजेंसी को देकर कंप्लीट फंडिंग हम लोग एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज से कर रहे हैं। क्योंकि आपको कहने के लिए खुशी होगी, सबको सुन के भी आनंद होगा कि इसमें जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इट इज 16.27% और 18.83%, 2 अलग रूट के लिए। और इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न is as high as 27.45% for one and 31.2.9% for the other। इसलिए ये प्रोजेक्ट देश में स्पीड बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में काम में आएगा। और हम लोगों ने बजट में कहा था कि मैंने पिछले जो रेल बजट, आखिरी रेल बजट था
उसके बाद में रेल बजट खत्म हो गया, इसमें मौका आपने नहीं दिया, इसलिए रेल बजट में हमने कहा था कि मिशन रफ्तार हम लगाएंगे और मिशन रफ्तार लगाकर हम लोगों ने इसको काम करने की शुरुआत की है और इसीलिए ये सभी के लिए हम रफ्तार से काम कर रहे हैं, मिशन रफ्तार के ऊपर भी। डॉक्टर जेठिया। मैं माननीय रेल मंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि नीति आयोग ने 18,163 करोड़ इस परियोजना के लिए उसका समर्थन किया है, इस योजना को पारित कर दिया है। अब समय की मांग है कि इस योजना को चरणबद्ध रूप से पूरा करने के लिए आपकी कार्य योजना क्या है और इस सारी पूरी योजना को, जैसा आपने बताया कि सारी व्यवस्थाएं आपको करना है, उसको पूरा करने के लिए आप कितना समय लेने वाले हैं, क्योंकि जब तक समयबद्ध कार्यक्रम आप नहीं बनाएंगे तब तक उस सारी योजनाओं के बारे में सुनिश्चित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी ये बताएं। थैंक यू। सर, अभी इसके जो इंटरनल अप्रूवल्स चाहिए कैबिनेट से, सीसीए से, वो अप्रूवल आने के बाद हम काम करने को जो जीरो डेट कहते हैं वो जीरो डेट आ जाएगी, उससे हम 3 साल में उसको पूरा करने की पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि डिले होने की वजह भी आजकल ये होती थी कि मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल काम करते थे, तो उनको ढूंढने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको साथ में लाने के लिए समय जाता था। अभी एक कंपोजिट एजेंसी काम करेगी, उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी, सो विल नो एग्जैक्टली वेयर बक स्टॉप्स और उनकी जिम्मेदारी करके 3 साल में हम काम पूरा करें। साथ ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सो मुझे कहने के लिए खुशी है, पूरी मात्रा में हम लोग कोशिश करें, प्रधानमंत्री जी भी अपने प्रगति में उसका मॉनिटर करें, 2019 के एंड तक हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी पूरी होगी तो पूरा फ्रेट ट्रैफिक हमारा उसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चला जाएगा। हमारे जो पैसेंजर ट्रैफिक के लिए लाइन खुली हो जाएगी, तो मुझे लगता है बड़ी मात्रा में अपने को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश से आपको जल्दी आने में भी सुविधा मिलेगी। थैंक यू। श्री टाइम शेड्यूल नहीं बताया आपने, उन्होंने सवाल जो पूछा था मिल जाए सर, 3 साल 3 साल। ओके, श्री संजय सिंह जी, आपके माध्यम से रेल मंत्रालय की इस सरकार में बड़ी ऊंची हैं, बुलेट ट्रेन चलने वाली है, सारी ट्रेनों की स्पीड बढ़ने वाली है, बहुत सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। हाँ, बुलेट। सवाल पूछिए। माननीय मंत्री जी हमारे पुराने मित्र भी हैं, बड़े योग्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से माननीय मनोज सिन्हा जी भी बहुत अनुभवी नेता हैं, मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रेनों का बड़ा बुरा हाल है, खास करके एक हमारे यहाँ दुरंतो चलती थी जो अब राजधानी हो गई है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, बहुत पुरानी ट्रेन है, माननीय मनोज सिन्हा जी जानते हैं। मैं इतने निवेदन करना चाहता हूं कि इंश्योर करें कि जो रेप्यूटेड ट्रेनें प्रदेश में, देश में चल रही हैं, वो भी सही सलामत चलें, वो भी पंक्चुअल चलें, वो भी साफ सुथरी हों। हमारी एसी फर्स्ट क्लास में लॉक नहीं बंद होता, बाथरूम में या तो पानी नहीं होता या तो पानी बहता रहता है। इन सारी चीजों का, खाना तो सेकेंडरी है, पहले हम आप सही सलामत ट्रेन में चल। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री द्वय से निवेदन करता हूं कि कृपया ये भी देखें कि पहले जनता का भरोसा भी हो कि जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं वो भी सही चलेंगी, वो भी पंक्चुअल चलेंगी, साफ सुथरी होंगी, तभी भरोसा होगा कि आपकी बुलेट ट्रेनों के बारे में और बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेनों पर हम लोगों का विश्वास जम पाएगा। आपसे विशेष आग्रह है। थैंक यू। ये जो आपने कहा, बिल्कुल कोई ट्रेन के बारे में आपने कहा, हम उसको देख लेते हैं, लेकिन जो पंक्चुअलिटी है उसको लगातार इम्प्रूव करने के लिए हम लगे हुए। आज मुझे कहने के लिए उसकी 80% से ऊपर भी पंक्चुअलिटी हम लाने में सफल रहे। लेकिन कुछ ट्रेनों में जो देरी होती है उसकी जो अलग अलग कारण है, उसमें से एक कारण, प्रमुख अहम कारण ये भी है कि बड़ी मात्रा में खास करके उत्तर प्रदेश में चलने वाली ट्रेन के लिए डबलिंग टिपलिंग का बहुत बड़ी मात्रा में काम शुरू हुआ है। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि 16,500 किलोमीटर हम लोगों ने डबलिंग टिपलिंग को मान्यता दी है, स्वीकृति दी है, जो पिछले 70 साल में सिर्फ 22,000 किलोमीटर दी गई थी। तो आप यकीन अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़ी मात्रा में काम हो रहा है। दूसरी बात सर, साथ ही में 42% सिर्फ विद्युतीकरण रेल का अब तक हो चुका था। हम लोगों ने पूरी मात्रा में अगले 5 साल में उसको डबल करेंगे। उसके लिए भी काम करने के लिए कुछ ट्रेन को रुकावट लानी पड़ती है, ब्लॉक देने पड़ते हैं, तो ये भी एक कारण है। लेकिन मैं जरूर आपसे सहमत हूँ कि उसके बावजूद भी, क्योंकि ब्लॉक न करने से भी ट्रेन चलाए, काम भी किया जाए, ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन उसको भी हम करने में कोशिश में लगे। उसके लिए मैंने कहा पंक्चुअलिटी इंप्रूव हो चुकी है। थैंक यू। और आपने सर, मैं लास्ट पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ कि आपने कहा उत्तर प्रदेश में ये जो ट्रेन चलेगी ये आम आदमी के लिए चलेगी,
ये ट्रेन आज भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, इस राज्यों के जो आम आदमी सफर करते हैं, उसी ट्रैक को अच्छा बनाकर हम लोग उसको बड़ा कर रहे हैं। यानी ये ट्रेन लोग आम आदमी के हित के लिए ही की जा रही है। तो इसके लिए मैं आपकी चिंता से बिल्कुल सहमत हूँ। हम उसको भी ध्यान में रखें। Thank you. Question 64, Shri Menon. No, question is over. No, please. Please, question 64. Yes, let the answer be given. I would. Question 64, let the answer be given. जी. दोनों सभा पटल पर सभापति जी रख दिया गया। जी, अब आप पूछिए। I would draw the attention of the Honorable Minister to the fact that when we talk of digital literacy, we will have to first examine general literacy, whether we have, how much has the country in till 2017 covered the goal of 100% literacy, not digital literacy. Now the present situation is that more than 950 million Indians are still facing digital illiteracy. It's a substantial chunk of the Indian population. Now, how do you move further with regard to conveying this message of digital literacy to the remotest and the farthest area in this country where the villagers do not know how to operate even a small computer or something of that kind? Thank you. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह सच है कि एसोचैम की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि 950 मिलियन लोगों को इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है। उसमें एक दूसरा आंकड़ा भी हमने दिया है जो ट्राई हर साल उपलब्ध कराता है देश को, और उसी आंकड़े को हम सत्य मानते हैं। जहाँ तक डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का सवाल है, पिछले 3 वर्षों में अनेक कार्यक्रम और उसके पूर्व भी सरकार ने अनेक कार्यक्रम उसके लिए प्रारंभ किए हैं। वैसे ये काम हमारे वरिष्ठ सहयोगी रविशंकर जी का मंत्रालय देखता है, परंतु मैं माननीय सदस्य को, सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि IT मास लिटरेसी नाम का एक कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ, जिसे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का नाम दिया गया और एक लक्ष्य रखा गया कि 10 लाख लोगों को इसमें डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। दूसरा कार्यक्रम फिर सरकार ने शुरू किया डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा के नाम से, और उसमें 42.50 लाख लोगों को डिजिटल लिटरेसी से अवगत कराने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य था कि 19 तक प्राप्त करेंगे, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि दिसंबर 2016 तक ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। डिजिटल फाइनेंस फॉर रूरल इंडिया, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एक्सेस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स अंडर द डिजिटल साक्षरता अभियान हैज बीन इनिशिएटेड इन नवंबर 2016, और इस योजना के अंतर्गत भी 650 जिलों में और 5,735 विकास खंडों में ये ऑर्गेनाइज करके कार्यक्रम सरकार ने काफ़ी लोगों को डिजिटली साक्षर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी सरकार ने पिछले फरवरी माह में शुरू किया है, और मैं समझता हूं कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो प्रगति हुई है वो संतोषजनक है, और भविष्य में भी इस प्रगति को हम और बढ़ाएंगे। जहाँ तक इंटरनेट की उपलब्धता का सवाल है, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23% से ज़्यादा वृद्धि हुई है, और जो एक महत्वाकांक्षी योजना हमने प्रारंभ की है भारत नेट के नाम से, जिसमें 250,000 माने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हम 2019 मार्च तक 100 Mbps के हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम करने जा रहे हैं, जिसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों तक हमारा ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। करीब 30,000 से ऊपर ग्राम पंचायतों को हमने लिंक कर दिया है, वहां वाईफाई हॉटस्पॉट लगा करके हम ये सुविधा देने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 60 करोड़ ग्रामीण लोगों को ये सुविधा उपलब्ध यह सरकार करा पाएगी। दूसरा सवाल, key factor that hinders the growth of digital India is the shortage of skilled workforce. Only an estimated 2.3% of India workforce has undergone formal skill training, which is significantly lower than the world average of 50% of developed nations. Now, what is the government doing with regard to preparing the skill training on that?
सदस्य ने सही बात कही है और सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना खासतौर से इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है और रविशंकर जी का मंत्रालय भी इस दिशा में काम कर रहा है और टेलीकॉम मंत्रालय ने भी ऐसे 10 केंद्र अभी तक खोलने का हमने निर्णय लिया है, जो आने वाले 2 वर्षों में ऐसे 400 केंद्र खोल करके ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे। श्री मोहंती। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल बहुत सिंपल है, एक ही सवाल है और ये सवाल पूछने के पीछे 2 रीजंस है सर। इट्स रियली गुड कि डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा जा रहा है आज के दिन में एंड इट शुड रियली हैपन। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पर आज भी ऐसे बहुत रिमोट विलेजेस हैं, बहुत फार्मर्स हैं, बहुत इलिटरेट एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर आज तक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली नहीं पहुँचा है। तो उस जगह पर आप इंटरनेट पहुँचाने की बात करते हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं? दूसरी बात है सर, मैं तो रिमोट एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी भी बात करूँ, दिल्ली में भी इंटरनेट एक्सेस करना आसान नहीं है सर। दिल्ली में भी इंटरनेट एक्सेस करना आसान नहीं है। पिछले 3-4 महीनों से, आई एम सो सॉरी टू से, पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार MTNL ऑफिस में कंप्लेन किए जा रहा हूं कि मेरे फोन से मैं एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है, मैं कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, वाईफाई कभी भी कनेक्शन आता है तो बहुत बुरी तरह से आता है। बट वेरी सॉरी टू से सर, टिल नाउ माई कंप्लेन्ट्स हैव नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपर्ली। सो मुझे क्या मंत्री जी बताएंगे? और बार कॉल ड्रॉप्स, प्लीज एड्रेस द चेयर। बार कॉल ड्रॉप्स होते हैं सर। कहीं अगर दूर में कोई जरूरी बात करना होता तो बात करना दूर की बात हो जाती है सर, इंटरनेट तो छोड़ दीजिए, इंटरनेट डजंट कम इनटू क्वेश्चन। सो मुझे मंत्री जी बताएं प्लीज कृपया करके कि जब फोन कनेक्शन ही गलत आ रहा है तो इंटरनेट की बात आप कैसे करते हैं और डिजिटल इंडिया की बात आप कैसे करते हैं जब डिजिटल दिल्ली भी नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से? थैंक यू। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में कई प्रश्न पूछे हैं। पहला, मुझे बोलने दीजिए कृपा करके। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि बिजली नहीं पहुंची है जिस गांव में, जिस रिमोट एरिया में, वहां कैसे इंटरनेट पहुंचेगा। उसके लिए सरकार ने एक अलग से कार्यक्रम तय किया है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ही 15 अगस्त को कहा था, एक निश्चित तारीख बताई थी कि देश के हर गांव तक बिजली ये सरकार पहुंचा देगी। नहीं, वो बोलते नहीं। प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट। आपको यही लगेगा कि वो बोलते हैं लेकिन वो जमीन नहीं, पर प्लीज होता डोंट इंटरप्ट। 18,000 गांव में पहुंचा दिया, 18,000। दूसरी बात ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने का है वो सरकार की केवल योजना नहीं है, आप देखते रहे, इसे धरातल पर पहुंचा करके ये सरकार दिखाएगी। तीसरी बात जो उन्होंने कहा है, दिल्ली में ये सच है कि इंटरनेट की सुविधा, इन्होंने जो कॉम्प्लेन किया है मैं निजी तौर पर इसे देखूंगा और अगर वो इनकी कॉम्प्लेन पर ध्यान नहीं दिया गया है तो 1 मिनट मुझे पूरा करने दो और उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करूंगा। तीसरी बात, कॉल ड्रॉप की बात भी इन्होंने उठाई है, तो मैं एक बात सदन को बताना चाहता हूं, पिछले 10 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा BTS इस देश में लगे हैं। पिछले दिनों एक तरंग संचार पोर्टल के नाम से हमने पोर्टल भी जारी किया, खास तौर से पास इलाके में या जहां बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे लोधी गार्डन है जहां लोग सुबह टहलते हैं, वहां BTS लग रहा था और सुबह जो टहलने वालों का एक फोरम है उन्होंने धरना दे दिया कि साहब यहाँ नहीं लगेगा। दिल्ली के अनेक इलाकों में BTS नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। इसके कारण केवल लोगों में जागरूकता बढ़े कि ये जो EMF रेडिएशन है इससे कोई, इस विकिरण से किसी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है, हमने संचार पोर्टल जारी किया है। आप जहां चाहें जिस भी BTS के बारे में जानकारी चाहें उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर में होने वाले विकिरण के बारे में भी अगर आप चाहेंगे तो 4,000 रुपया हमारे मंत्रालय में जमा करिए, टर्म फील्ड यूनिट के ऑफिसर जाएंगे, जांच करके आपके सामने ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट देंगे कि आपके ड्राइंग रूम में कितना रेडिएशन है, आपके बेडरूम में कितना रेडिएशन है। सरकार प्रयास कर रही है, ये सच है। ट्राई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बात साफ तौर पर कही गई है कि कॉल ड्रॉप में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन ये मैं दावा नहीं करता, जरा मुझे पूरा करने दीजिए, ये मैं दावा नहीं करता कि कॉल ड्रॉप खत्म हो गई। रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है इसमें और निश्चित रूप से इसकी को मॉनिटर किया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा और माननीय सदस्य की चिंता का मैं गंभीरतापूर्वक ध्यान और मुझे लगता है कल तक मैं कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। थैंक यू। श्री रिपुन बोरा। Thank you, sir. I want to know from the Honorable Minister, he has just mentioned that the digitalization in the Gram Panchayat areas also
Now I am citing some example in our Assam. What happened while these cables are laid, all the roads of the Gram Panchayat roads, that is these Pakka roads, that has been destroyed. That has been destroyed, and this is not repaired after laying the cables, and it is creating untold inconvenience to the public. This is one. And second thing, though the cables has been connected with the Gram Panchayat, but there is no staff, no computer, no electricity. It is just lying. It is a farce. So now I want to know that whether the ministry has any plan to rectify these things. Thank you. महोदय, जब हम सड़क के किनारे केबल बिछाने का काम करते हैं तो राज्य सरकार के उस विभाग से अनुमति लेते हैं। अब सड़क बनाना हमारा काम नहीं है। माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इनके सड़क की क्षेत्र टूट गई है, वो कृपया ध्यान दें। और बिजली पहुंचाने का काम भी हमारा नहीं है, जहां तक केबल डालना और उससे वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध कराना वो काम हमारा है और उस काम को हम पूरा करेंगे। All arrangement that should be done, otherwise it is lying useless. Thank you, Shri K.D. Singh. Sir, the question was on internet connectivity. So I think internet connectivity का तो पता नहीं सर, यहाँ इस house में probably telepathy is very good because it was my same question which my honorable friend picked it up on the quality of service. But however, I'll rephrase my question. Sir, आप जो कह रहे हैं मेरी क्वेश्चन को प्लीज़ कंप्लेंट समझ के डिफेंड करेंगे तो इसके तह तक नहीं जाएंगे। The quality, one is quantity. The question is on quantity. 950 million लोगों के पास internet connectivity नहीं है. We all know it, and you are trying to achieve that. But जहाँ पे है, वहाँ पे quality is so pathetic. मेरे पीछे बैठे मेंबर जो कह रहे हैं वो तकरीबन सबके साथ सच है। अगर आप किसी को भी पूछेंगे, किसी घर नहीं चलता, किसी के घर नहीं चलता। मेरे हिसाब से शायद आपका भी नहीं चलना चाहिए। अगर आपका कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है तो वो सबके लिए करवा के दीजिए। तो देखो, माय रिक्वेस्ट इज कि अपनी कंट्री की सर जो सोच है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन से रेलिवेंट होगा। अब अपने यहाँ सर लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन हु कैन राइट हिज नेम और हर नेम इज नॉट कंसिडर्ड इलिटरेट। दैट्स अवर डेफिनेशन। सिमिलरली ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी हमने पहुँचा दिया, उसको हम कनेक्टेड मानते हैं, पर सर अगर वो काम ही नहीं करेगा तो उस कनेक्टिविटी से कहाँ चलेंगे? सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट विल यू सीरियसली कंसिडर द क्वालिटी ऑफ दिस सर्विस? इट इज द प्रॉब्लम विद एवरीवन। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसे मैं गंभीरता से लेता हूं। पिछले दिनों जो ऑक्शन हुआ है, 965 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अभी लोगों ने लिया है और मैं समझता हूं कि रोल आउट होने के बाद जो लाइसेंस कंडीशन है 6 महीने बाद वो रोल आउट का काम शुरू करते हैं और उसके 2.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम पूरा होने के बाद जरूर कुछ सुधार आपको दिखेगा और निश्चित तौर पर मैं इसे मॉनिटर करूंगा कि अच्छी क्वालिटी की सुविधा आप सबको उपलब्ध हो। थैंक यू। क्वेश्चन 65। आपसे अनुरोध है, हम मंत्री जी से बैठ के डिस्कस कर लेंगे, समय रह नहीं गया, 1 मिनट रह गया। क्या क्वेश्चन में रहेगा? 2 मिनट है। छोड़िए, हाउस मंत्री जी से बैठ डिस्कस कर लें। हमारा इनका बड़ा गहन रिश्ता है, हम वो बात कर लेंगे। नो बट देयर आर सप्लीमेंट्रीज। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं सुनना है तो सप्लीमेंट्री तो अनुमति से उत्तर को सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। थैंक यू। एनी अदर सप्लीमेंट्री? मैं श्रीमान आपके आदेश पर बहुत मिठास से माननीय मंत्री जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि इतने क्राइम हुए, तो कितने % हैं? आप ये भी मानते हैं कि डिजिटल पेमेंट अभी टोटल आबादी का 20% से ऊपर कंट्री में शायद नहीं हुआ होगा और डिजिटल केंद्र भी हमारे यहाँ इतने कम हैं। अगर आप विश्व को आके तो चाइना हमें डिजिटल केंद्र हमसे 6 गुना ज़्यादा हैं, अभी डिजिटल केंद्र भी नहीं है। तो मंत्री जी सिर्फ इतना बता दिए, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी पूरी कमेटी जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट के फ्रॉड जो हो उसकी जो इंश्योरेंस है वो होना चाहिए और वो इंश्योरेंस की जिम्मेदारी सरकार को होना चाहिए, जिससे जिसके फ्रॉड हो
उसको वो रुपया मिलने की गारंटी हो। क्या सरकार उस पर विचार कर रही है? इंश्योरेंस की बात सही कही, भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ रहा है सर, और चंद्रबाबू कमेटी की अनुशंसाओं पर सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है सर। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां इंश्योरेंस देती हैं सर। हम लोग की पूरी कोशिश है और मैं नीतिगत रूप से आपके विचार के साथ हूं। सिर्फ अंतिम एक लाइन सर, जितने फ्रॉड हो रहे हैं सर, 1200 करोड़ हर साल ट्रांजैक्शन होते हैं सर, और एटीएम वगैरह का फ्रॉड है 0.001% और दूसरा फ्रॉड है 0.07%। थैंक यू वेरी बहुत ही मच। कम संख्या है, इतना आपको बताना चाहिए। Question hour over. House stands adjourned till 2:30 p.m. आइए साहब, चलिए।